Great. Great. So today we have Anjali here, and Anjali is an author and she's a sustainability expert for plastics. So we would like to start today's session with a little bit of knowledge as sharing by Anjali on her sustainability efforts, and then we will keep the open forum for everyone to discuss, like how actually are we working on improving our lifestyles with sustainability. So, Anjali, would you like to take it forward? Yeah, sure. Hi, namaste everyone. I am Anjali. So I work mainly as a writer. मैं content लिखती हूँ, books लिखती हूँ, poetry लिखती हूँ, and मैं research करती हूँ on sustainability, specifically how to use sustainability through storytelling. And जब हम sustainability में काम करते हैं, one big problem we come across is called plastic pollution. हम सब everyday plastic use करते हैं, whether that's our toothpaste tube या फिर the bags we get our groceries in. If we are ordering online, then the very groceries जो आती है वो भी plastic में wrapped आती है. So there's a lot of plastic being used. Can everyone hear me, by the way? Yes, Anjali, we can hear you. Yes. So there's a lot of plastic being used in our daily life. Like, for example, we have from this chips packet, right, to something like a book that comes wrapped in plastic if you have ordered it online, to bubble wrap. There's a lot of different kinds of plastic जो कि हम everyday life में use करते हैं, especially in terms of medicine packets, medicine bottles, उनकी caps. एंड द प्रॉब्लम इज द आइडिया वाज कि ये सारा प्लास्टिक रिसाइकल हो जाएगा अगर हम हमारे ड्राई एंड वेट वेस्ट को सेपरेट करके फेंकेंगे. सो आर सिटीज एंड आर इंफ्रास्ट्रक्चर विल टेक केयर ऑफ इट. एंड कई सिटीज में ऐसा होता भी है, but in cities like somebody said they are from Baroda. So in cities like Baroda, I have also seen in certain areas, and even in Bombay, I've seen in certain areas that अभी तो जैसे बॉम्बे में लॉ आ गया है कि if you don't segregate your waste, I think people in Bombay will agree there's this new law, right? कि अगर वेस्ट सेग्रीगेट नहीं करो तो फाइन देनी पड़ती है. But I've seen in Kolkata, where I live, for example, there are no waste segregation rules. Maybe there are some on paper, but nobody follows them, to a point where the Safai Karamcharis also don't follow them anymore, because it is much more difficult for them to know which house is segregating and which is not. So they just mix everything because they're most likely going to find it mixed anyway. Right? So, ऐसे situation में, when we don't have the recycling infrastructure, तो the thing we can do is कि हम अपने end से, while it is not possible for everyone to 100% cut out plastic, what we can do is we can reduce. So for example, जैसे अगर plastic reduce करना है, what can we do? So there are a few things that I have tried personally in my life, and that few things I have gathered from other people who have tried to reduce plastic. And the one of the easiest things जो कि कोई भी बिगिनर भी कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ एज, चाहे आप स्टूडेंट हो, अगर आपको लाइक अपने किड्स या ग्रैंड किड्स को बताना है, या फिर आप आपके तरह सीनियर सिटीजन हो हु माइट नॉट गो आउट अ लॉट. सो वन वेरी सिंपल थिंग टू डू इज मेक अ लिस्ट ऑफ ब्रांड्स जो कि प्लास्टिक फ्री चीजें प्रोवाइड करते हैं. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि फॉर बाथरूम एसेंशियल्स वी यूज प्लास्टिक फ्री, because that is quite dangerous to use glass. But say आप आटा मंगवा रहे हैं, so maybe you can look at brands which is delivering in maybe not multi-layer plastic but single layer plastic, because plastic के भी types होते हैं. So or you can make a list of brands. जैसे मैंने अभी order किया है from a brand, and this is detergent that I have ordered. This is like 50 liters of detergent from this brand called Coco Custo. So ये लोग क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ गिविंग इन अ प्लास्टिक बैग, ये या तो टिन के डब्बे में अपना डिटर्जेंट देते हैं जो कि रीयूजेबल होता है, या फिर ये लोग रिफिल्स भेजते हैं जो कि छोटे पाउचेस में आती है. इधर पेपर पाउचेस जो कि आप कंपोस्ट कर सकते हो घर पे, या फिर पेपर पाउचेस जिसको आप रीयूज कर सकते हो रीइंफोर्स करके टेप वेप से. कैन एवरीवन हियर मी? Yes, yes. यस. एंड अगर मैं थोड़ा जल्दी बोलती हूँ तो अगर किसी के लिए भी टू फास्ट हो रहा है तो प्लीज लेट मी नो. हाँ. Nice, या fine. फिर या थैंक यू. या फिर आप क्या कर सकते हो कि अगर ब्रांड्स रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है तो अपना प्लास्टिक वेस्ट लीजिए, उसे सिंक में धोइए साबुन से, एंड उसे अपने घर के किसी भी एक कॉर्नर में कलेक्ट करिए, विच इज व्हाट आई डू.
लाइक इफ आई कुड टर्न माई कैमरा आई वुड शो यू दैट देयर इज अ कॉर्नर जिसमें 3 महीने का प्लास्टिक वेस्ट कलेक्टेड है। एंड मैं आप सबको चैट में कुछ ब्रांड्स के नाम दूंगी, जैसे इकोकारी, अगर कोई कानपुर में रहता है तो कानपुर प्लॉगर्स, इकोकारी महाराष्ट्र में काम करते हैं। सो ये सारे ब्रांड्स आपके प्लास्टिक वेस्ट को लेके जाएंगे या फिर आपको बताएंगे कि इन तक आप अपना प्लास्टिक वेस्ट कैसे पहुंचा सकते हैं। एंड उसको या तो ये रिसाइकल करेंगे या उसको अपसाइकल करेंगे। अब अपसाइकलिंग क्या होता है कि आपके प्लास्टिक वेस्ट से ये कोई चीजें बनाएंगे, जैसे बैग्स हुआ, लैपटॉप स्लीव्स हुआ, जो कि हमें प्लास्टिक की ही लगती है। बिकॉज अगर मैं लैपटॉप को क्लॉथ के स्लीव में डालूंगी इन कोलकाता मॉनसून्स, मेरा लैपटॉप खराब हो जाएगा, वो कपड़ा उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। सो इवन दो प्लास्टिक से माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन होता है। अब माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? जब भी आप प्लास्टिक यूज करते हो तब माइक्रोप्लास्टिक्स नहीं क्रिएट होते हैं, बट जब प्लास्टिक फट जाता है या फिर हम जब हमारे सिंथेटिक कपड़े उन्हें धोते हैं तो उनसे छोटे छोटे कतरन निकलते हैं, जैसे आप नोटिस करोगे राइट, कपड़ों के रोए उठते हैं जिसे हम हिंदी में कहते हैं। सो जब आप वैसा करते हो तो वो छोटे छोटे जो रोए होते हैं, अगर आपका कपड़ा पॉलिएस्टर, नाइलॉन या फिर इन सब सिंथेटिक मटेरियल्स का बना हुआ है जिसे हम मैन मेड कपड़ा कहते हैं, सो वो आपके वॉशिंग मशीन या फिर हाथ से धोने से भी उसके जो रोए निकलेंगे वो पानी में जाके घुल जाते हैं। एंड हमारा वेस्ट वाटर सिस्टम उसे फिल्टर करने की कोशिश करता है, बट इट इज नॉट 100% एक्यूरेट, नथिंग इज। तो बिकॉज वो 100% एक्यूरेट, छोटे छोटे प्लास्टिक के कतरन हमारे सॉइल में चले जाते हैं। एंड सॉइल में जाने के बाद वो हमारे, बिकॉज सॉइल से हमारे प्लांट्स उगते हैं, सो प्लांट्स में चले जाते हैं, प्लांट से जाके वो हमारे खाने में आ जाते हैं, चावल गेहूं ये सब में आ जाते हैं। एंड अब लोगों ने हार्ट, ब्रेस्ट मिल्क, छोटे छोटे बच्चों में जो न्यूबॉर्न बेबीज है उनके ब्लड स्ट्रीम में पाया गया है कि माइक्रोप्लास्टिक्स है। एंड हमें पता नहीं है कि इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। यंग पीपल में जो हार्ट अटैक की रेट्स बढ़ रही है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि शायद इसका प्लास्टिक से रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि यंग पीपल बिकॉज ऑफ हमारी हैबिट्स ऑफ ईटिंग फ्रॉम स्विगी एंड जोमैटो, फॉर आर हैबिट ऑफ ईटिंग प्रोसेस स्नैक्स, हम बहुत प्लास्टिक कंज्यूम करते हैं। सो आइडियली आप या तो अपना प्लास्टिक एक कोने में रख के रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं, जो कि कानपुर प्लॉगर्स, इकोकारी, रीचक्रा ये सब ऑर्गेनाइजेशंस लेती हैं। या फिर अगर आप चाहें तो प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि स्किन केयर आपने बेयर नेसेसिटीज इंडिया से खरीदा, घर का सामान कोको कूस्टो टाइप ब्रांड से खरीदा, और इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके नाम है, जैसे सोनिका भासिन हुई, मानसी शाह हुई, जो कि आपको बताते हैं कि आप ये सारी ब्रांड्स कहाँ खोज सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली आपके लोकल किराने के स्टोर पे प्लास्टिक फ्री मिलना बहुत मुश्किल है। एंड अगर आप रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, रिसाइकल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको रीयूज कर सकते हैं। बिकॉज सिंगल यूज प्लास्टिक इज द प्रॉब्लम। जो प्लास्टिक आप बार बार यूज कर पा रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक हुआ जैसे वो थैली जो हमें मिलती है सब्जी खरीदने के टाइम, तो उसका एक बहुत सिंपल रिप्लेसमेंट है कि आप अपने साथ अपने घर से एक छोटी थैली लेके जाए, कपड़े की थैली हुई, या फिर जो हमारे पास पुराने टाइम में झोले आते थे बड़े बड़े, जिनपे ब्रांड्स के बड़े बड़े नाम लिखे रहते थे, जिप रहती थी, अगर किसी के पास वो है। एंड द बिगेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारे सबके लिए सस्टेनेबिलिटी अलग दिखेगी। तो जो काम मैं कर पा रही हूँ वो शायद कोई और नहीं कर पाए। सो इसीलिए गिल्ट नहीं पालना है कि अरे हम तो इतना प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, उसके सोल्यूशंस खोजने हैं कि मेरी लाइफ में यहाँ से प्लास्टिक आता है तो इसका कोई रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं है तो क्या मैं रिसाइकलिंग के लिए भेज सकती हूँ या भेज सकता हूँ। और अगर रिसाइकल नहीं कर सकते तो वेल दैट इज लाइफ, जीना तो पड़ेगा। तो उस प्लास्टिक को यूज करिए जब तक और कुछ नहीं मिलता है आपको। अब रिसाइकलिंग में, हाँ जी, सॉरी, one question here, like यस। आप ये बता सकते हैं कि एक प्लास्टिक को ये होने में, मतलब डाई होने में कितना टाइम लगता है? हाउ मेनी इयर्स डज इट टेक टू डिग्रेड इन द? सो दैट डिपेंड्स फ्रॉम प्लास्टिक टू प्लास्टिक, मतलब बिकॉज लाइक, बट यूजुअली प्लास्टिक इज नॉट बायोडिग्रेडेबल इन द कन्वेंशनल सेंस। जैसे अगर आप एक एप्पल खाते हैं और आप उसे मिट्टी में फेंक देते हैं, 2-5 दिन में यू विल सी कि एप्पल गया, वो मिट्टी बन गई है। कॉटन की शर्ट में भी 6 महीने। बट अगर आप एक प्लास्टिक से, पॉलिएस्टर से बनी हुई शर्ट या फिर चिप्स का बैग डालेंगे तो मिनिमम 100-200 साल लगेंगे उसको बायोडिग्रेड होने में। और वो भी बायोडिग्रेड नहीं होगा, वो छोटे 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 माइक्रोप्लास्टिक्स में टर्न होगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसे जानवर खा नहीं सकते हैं हम्म। और वो हम इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता है।
तो इसको फिर से न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज नेचर अडेप्ट करता है. some worms have come out who can digest plastic, but they are very rare, and I think they are more for bioplastic. क्योंकि अब आजकल एक और इन्वेंशन हुआ है विच इज बायोप्लास्टिक, जो कि कॉर्न से, शुगर केन से, इन सब से प्लास्टिक बनाते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल है. बट उसकी प्रॉब्लम्स भी है. ऑल बायोप्लास्टिक्स आर नॉट इक्वल. सो कुछ से हेल्थ इश्यूज लिंक किए गए हैं जो कि नॉर्मल प्लास्टिक के साथ होते हैं. फिर प्लास्टिक पे कई तरह के केमिकल्स यूज होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली प्लास्टिक जैसे कि आप नोटिस करोगे जलता नहीं है, बहुत मुश्किल से इट बर्न्स, राइट. सो ऑल ऑफ दैट इज बिकॉज उस पे केमिकल्स यूज किए जाते हैं टू मेक इट अ सर्टेन स्ट्रक्चर. सो दोज केमिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन बायोप्लास्टिक्स, जिसके कारण जो प्लास्टिक से हेल्थ इश्यूज होते हैं वो सर्टेन बायोप्लास्टिक से हो सकते हैं. एंड फॉर अ कॉमन मैन और वुमन टू नो कि ये बायोप्लास्टिक सेफ है, ये बायोप्लास्टिक हेल्थ के लिए खराब है, might be very difficult, because that is very specialized knowledge. So that is why the idea is always reduce plastic use, reuse plastic when possible, and recycle when you cannot. तो रिसाइकलिंग के लिए अगर आप जैसे पुणे में रहते हो या फिर कोई ऐसी सिटी में रहते हो जिसमें वेस्ट एग्रीगेशन अच्छा है, तो आप अपना वेस्ट एग्रीगेट करके भेजिए एंड देन यू राइट टू अथॉरिटीज. जैसे अ लॉट ऑफ सीनियर पीपल आर पार्ट ऑफ देयर लोकल म्युनिसिपलिटीज and local communities. They are heads and chairmen of people, right? So you can lead the young people by example. You can tell them कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन को एक ईमेल डाल सकते हैं या फिर इन्हें एक लेटर लिख सकते हैं कि हमारे सिटी के प्लास्टिक रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जाए, या फिर हमारे सिटी में ड्राई वेस्ट सेपरेशन को एनकरेज किया जाए. अदरवाइज यू कैन सेंड इट टू द ब्रांड्स जो कि मैंने मेंशन किए, जो कि आपको एक ऑनलाइन सर्च से मिल जाएंगे. I personally recommend Kanpur Ploggers क्योंकि Ecokari and Rechakra, while they are based in Maharashtra, Ecokari at least is very particular. वो लोग सिर्फ certain kinds of plastic लेते हैं, which is multi-layered plastic. But कानपुर Ploggers वो हर तरह की प्लास्टिक लेते हैं. अगर आप कानपुर में रहते हैं तो every Sunday they do a Ganga cleanup, which is a lot of fun. You can go meet the young people, talk to them. Highly encourage that. And I've seen a lot of older people come to their events as well. But like अगर आपको ये चाहिए कि आपके प्लास्टिक वेस्ट से किसी का फायदा हो, उससे कोई नई चीज बने, then I would recommend Ecokari and Rechakra, because they will turn it into beautiful things like pouches, laptop bags, house decor, जो चीजें हम सोच भी नहीं सकते, and they empower women. So the idea of sustainability, चाहे आप प्लास्टिक की बात करें, चाहे आप फास्ट फैशन से स्लो फैशन पे आने की बात करें, which is going to be the next bit I talk about, the idea is कि हम अपने साथ दूसरों का विकास भी करें. So when you support a sustainable organization, is someone saying something? So you can Hello? you can continue, Anjali. You can Yeah, thank you. तो जब आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं which gives empowerment employment to women, या फिर which is locally based in your area, जहाँ पे जिन लोगों से आप जाके मिल सकते हैं, you form a community. एंड अगर कोई एक चीज है जो क्लाइमेट चेंज को बीट कर सकती है, जो प्लास्टिक वेस्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, दैट इज कम्युनिटी एम्पावरमेंट. क्योंकि एक जन अपने घर के प्लास्टिक को खत्म कर सकता है, बट जब आप अपने नेबर्स, अपने आसपास के लोगों से बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे इस प्रॉब्लम के बारे में, वो आपके एग्जाम्पल को, आपके एफर्ट्स को देखेंगे. जैसे आज हम सब बात कर रहे हैं, सो वी फॉर्म अ कम्युनिटी. मानसी हैज फॉर्म्ड अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी हियर, जो कि सब लोग एक साथ आते हैं एवरी संडे टू टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स. सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज, जो एक जन कर रहा था काम, वो बड़ा हो जाता है. It becomes a bigger than one person thing. It becomes an effort which is to be noticed by people. That is how we get governments to notice us. That is how we get different organizations to be like, this is worth investing in. And the simplest way, if possible, to reduce plastic waste, to reduce microplastic pollution, is something that old people have been telling us for a long time, like older generations, जो हमारी दादी नानी हमें बताती हैं, which is simply you wear natural fabrics. आप कॉटन पहनिए, लिनन पहनिए, बिकॉज इन फैब्रिक्स में, क्योंकि ये सिंथेटिक नहीं होते, इनकी कतरन अगर नेचर में चली भी जाती है तो वो डिसॉल्व कर जाती है, बायोडिग्रेड कर जाती है.
वर्सेस जो हमारे नाइलॉन, पॉलिएस्टर ये सब होते हैं, ये एक तो कम ड्यूरेबल होते हैं, जल्दी फट जाते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि इनको 100% कट आउट कर दीजिए, बिकॉज हर पर्सन के स्टाइल, साइज, कंफर्ट लेवल्स अलग होते हैं. बट कॉटन एंड लिनन इंडियन क्लाइमेट से बहुत सूटेड है. अभी जो गर्मियां बढ़ रही है उनके लिए बहुत अच्छे हैं. एंड ऑल्सो लाइक आई सेड, अगर ये नेचर में चले जाते हैं, दे डोंट कॉज पोल्यूशन, दे जस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर. So that was all I had to say for now about plastic pollution. अगर आप सस्टेनेबिलिटी, प्लास्टिक पोल्यूशन, वुमेन्स राइट, मेंटल हेल्थ, इन सब टॉपिक्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब अंडर द नेम अंजलि रुंगटा, और यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आई विल शेयर माई लिंक्स विद मानसी. एंड अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, a lot of my books are available on my website and on this website called Brown Living India, जो कि इंडिया का फर्स्ट प्लास्टिक फ्री ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है. Amazon की तरह है, but it's completely plastic free. They even give us this tape to use with the products, which is a water based tape. Like, so these are some of the innovations in the plastic free sphere. It's a paper tape, but when you put water on it, it becomes sticky. So it doesn't cause the same kind of waste that sellotape does. और इंस्टेड ऑफ बबल रैप, बहुत सारी कंपनीज हनीकॉम पेपर यूज करने लग गई हैं, जिससे चीजें टूटती भी नहीं है एंड प्लास्टिक पोल्यूशन भी नहीं होता है. बिकॉज अगेन, हनीकॉम पेपर आप रीयूज कर सकते हैं, बबल रैप भी आप रीयूज कर सकते हैं, या फिर हनीकॉम पेपर अगर आप चाहें तो अपने वेट वेस्ट के साथ सेग्रीगेट करके फेंक सकते हैं, या फिर उसे कॉम्पोस्ट कर सकते हैं. एंड अगर आप चाहें तो उसे ड्राई वेस्ट के साथ भेज के रिसाइकिल भी करवा सकते हैं. Thank you, Anjali. Thank you so much for the insight. Abhi, I would like to keep the forum open for everybody. We have Asha ji here, we have Baba here. If you guys, आप लोग अपने अपने सस्टेनेबल एफर्ट्स के बारे में, या फिर प्लास्टिक को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं इन अ वे दैट हमारा फ्यूचर बेटर हो, अगर एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू पिक इट अप. आशा जी, नरेश जी, बाबा. Basic thing which Anjali has emphasized, plastic is in fact a earth choking danger. It chokes the earth, and that makes the environment unnatural. तो जो वर्ड चोकिंग आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक के साथ. व्हेन वी थ्रो प्लास्टिक हेवेयर, तो ये जो है जहां भी जाता है वहां चोक कर देता है लैंड को. एनिमल्स उसको खाते हैं, तो उनका भी, मैं तो वेटनरियन हूँ, सो आई नो हाउ मेनी टाइम्स दी आवर एनिमल्स दे फॉल prey to this plastic which is scattered on the wayside with खाने के साथ. लोग क्या करते हैं, खाना डालते हैं थैले में, प्लास्टिक के फेंक देते हैं. जानवर ने खाना ही है उससे, वो चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो. तो इनफैक्ट it is a very dangerous thing which needs special care. अभी many of the places they have put two different these waste baskets, green and what's your another person is non-green. तो वो उसमें अगर हर घर में भी 2 डब्बे रख दे जाए, एक में प्लास्टिक का जाए और एक में जो है दूसरा सामान जाए, that will be helpful for the man who collects your garbage. कि प्लास्टिक आप अलग करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब प्लास्टिक वाले जाते हैं ये वेस्टेज ले जाके, तो देयर आर पीपल हु आर सेग्रीगेटिंग इट देयर इन द दोज व्हीकल्स इटसेल्फ. तो उनको हम थोड़ा मदद कर सकते हैं पहले से उसको सेग्रीगेट रख के. तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच वी कैन अडॉप्ट. तो बजाय इसके, और जहाँ भी पब्लिक प्लेसेज हैं वहाँ तो जो है हम कुछ नहीं कर सकते, बट देन वी कैन जस्ट डिस्कस विद द पीपल हु आर मैनेजिंग इट. 3 बिन्स रखे जाते हैं, वेट वेस्ट, हाँ, यस. मोस्ट ऑफ द उसमें ये बिकमिंग वेरी वेल अवेयर कि वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट अलग से दिखाई दे रहे हैं अभी हर जगह. हाँ, प्लास्टिक ये तो जो है अलग ही होना चाहिए इसका कंटेनर. हाँ, बिल्कुल. एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो अलग तो कर देते हैं, बट उस प्लास्टिक पे खाने के दाग लगे रहते हैं, या फिर जो भी हमने मंगवाया है उस चीज के तेल के मार्क्स लगे रहते हैं, और रिसाइकल स्ट्रीम में वो रिसाइकल नहीं हो पाता है. बिकॉज क्लीन प्लास्टिक ही सिर्फ रिसाइकल हो पाता है. इवन कलर्ड प्लास्टिक को रिसाइकल करना बहुत मुश्किल है. सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस प्लास्टिक को धो के, साफ करके, सुखा के फिर फेंकें.
इवन दो दैट इज अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो हम्म। अगर हम नहीं धो पा रहे तो उसको हम डीप फ्रीज में रख सकते हैं 2-3 दिनों के लिए, जब बाद में जब हम धो पाए। बिकॉज अगर हम बिना धोए फेंकेंगे तो वो लैंडफिल में ही जाएगा, वो रिसाइकिल नहीं होगा। ऐसा है क्या? वो कंपनी जो इस्तेमाल करती हैं इसको रिसाइकिल के लिए, दे यूजुअली क्लीन इट। यस। वाटर क्लीनिंग होता है और जो पक्का प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप इज क्लीनिंग। यस, करते तो हैं। करते तो हैं, बट यूजुअली हमें सिखाया जाता है कि अगर हम घर से ही करके भेजे तो सफाई कर्मचारियों दैट को इज कोशिश होगी। एडिशनल, कर सकते हैं। अदरवाइज व्हेन इट गोज फॉर रिसाइकलिंग, the very first step is to clean it with water, plenty of water, and then it goes for other steps. Anyway, it's better in case we do it. पर usually जो है घर में आपका एक ही गार्बेज कंटेनर होता है, which is not right. We प्रॉब्लमैटिक should है have सब। at least two, एक exclusively for plastic होना चाहिए, बिल्कुल। बाकी दूसरा अगले देखा जाएगा। आजकल प्लास्टिक अलग ही रखना चाहिए। आजकल काफी रिसाइकलिंग मशीन्स भी आ रहे हैं, वेबाई आप कंपोस्ट कर सकते हैं। तो जो आपका वेट वेस्ट आप कंपोस्ट कर देते हो, और बाकी जो आपका ड्राई वेस्ट है वो जाता है एज अ सिंगल वेस्ट। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड सोल्यूशंस दैट आर कमिंग अप, कि आप कंपोस्ट। हाँ जी। हाँ, सो कंपोस्टिंग का एक्चुअली दिस इज वेरी फन, जो आपने बोला कि कंपोस्ट की मशीन्स आ रही हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं या फिर हम्म। उन्हें टर्न करना पड़ता है। बट व्हाट आई एम डूइंग पर्सनली, मेरे घर पे हमने लोकल जो मिट्टी का काम करते हैं पॉटर्स, उनसे एक मटका खरीदा, उसके 2-3 होल्स बनवाए ड्रिल से, एंड उसके नीचे एक पत्थर रख दिया, एंड सारा वेट वेस्ट उसमें जाता है। उसके वेट वेस्ट के ऊपर हमारे कार्डबोर्ड के डब्बे, कोई भी पेपर का वेस्ट, थोड़ी सी हमारे पौधों में से मिट्टी जाती है। एंड 1-2 महीना, मतलब दिन में एक बार उसे खाली, मतलब कोई भी गार्डनिंग टूल से ऊपर नीचे कर दो, जैसे हम चम्मच से खाना मिलाते हैं वैसे, एंड 2 महीने में यू विल हैव खाद। आई हैव डन दिस पर्सनली। यस, एंड यस, पूरा वेरी सेटअप ट्रू। 100 रुपए लगता है, मटका, ड्रिल। Setup cost is nothing technically, right? That's a very good idea. Yeah, yeah. मटका तो हमारे हाँ, और अभी पहाड़ों में और देर दूर इलाकों में ये जो खाना बचता है उसको भी घड़ों में डाला जाता है, बट फॉर डिफरेंट पर्पज, yes, फॉर फर्मेंटेशन, yes, सो दैट पीपल कैन एंजॉय इट ड्यूरिंग पार्टीज। उसका मैं हूँ करके, हाँ यू नो दैट लोकल लिकर कैसे बनती पता है ना? हाँ, मैंने गोवा में देखी थी। हाँ हाँ, बस वही, दैट इज अनदर थिंग। तो हाँ वो पर आजकल देर आर पीपल आर सजेस्टिंग मैनी ऑफ द वेज। ये खाद वाला जो बताया, अभी गैस वाला चल रहा है कि यू कैन आई मीन रिट्रीव गैस फ्रॉम दैट वेस्टेज। उसमें से गैस निकलती है, यू कलेक्ट इट एंड स्टार्ट यूजिंग इट फॉर योर ओन पर्पज। उसे बायोडीजल कहते हैं। आई वर्क विद अ कंपनी दैट डज दैट। सो है वो नहीं, लोग। अभी जब ये ट्रम्प ने बदतमीजी करी थी उसके बाद शॉर्टेज का खतरा हो रहा था, गैस नहीं मिलेगी। तो देर वर पीपल हु रोड साइड में अपना वो थोड़ा सा वो चला रहे थे, क्या कुछ बनते हैं उन्होंने, क्या बोलते हैं उनको, जिसमें खोमचे में खाना बनाते हैं। हाँ हाँ उसने अपना लगाया हुआ था अलग से। उसने जो है एक वो नाले के नजदीक जो है वो कलेक्ट करता था, उसको अपना डब्बों में रख के, तो उससे गैस निकलती थी, अपना खाना बनाता था उससे। पीपल हाँ। सॉ इट। मेरे घर पे छोटा वेरी स्मॉल यूनिट बने एक आदमी के लिए। नहीं, मेरे घर पे एक वो- बायोगैस प्लांट था, तो हमारे देखो, हाँ हाँ, तबीला चिंचड़ में, एंड चिंचड़ तबीले। में। हाँ, वानगांव में था, बहुत बड़ा हाँ 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 बायोगैस प्लांट था। हाँ, हाँ। यूजुअली जहाँ पे काउज होते हैं वहां पे हाँ, बायोगैस प्लांट वहाँ पे होते हैं। बायोगैस जनरेट होती थी, एग्जैक्टली जो हम्म। वहाँ पे पहले टॉयलेट्स घर के बाहर होती थी, तो वो घर का टॉयलेट वेस्ट और काव का वेस्ट यूज करके वो बायोगैस चलता था। हाँ I don't know if we used it ever because I was too young at that time, but नहीं नहीं, इस्तेमाल होता है अभी। अब जो अभी ये देर इज ए बिग मूव कि आप जो है बायोगैस कैसे बना सकते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स इंक्लूसिव ऑफ दिस टूल्स वगैरह वगैरह, इट गोज इनटू दैट स्टोरेज बिलो दी टैंक बनाए हुए हैं। उन ट्रेन टैंक्स में की से भी। गैस निकलती है एंड यू हाँ, कैन यूज आजकल इट। ट्रेन में भी होने लग गया है, बायो वेस्ट कलेक्ट होता है जो कि फिर आगे कलेक्ट जाके। होके इलेक्ट्रिसिटी बनती है, आप उसको जला सकते हैं, बत्ती गैस, जो गैस की बत्ती नहीं होती वो चल जी। सकते हैं।
वो So खैर ऐसा है, यू आर टॉकिंग ऑफ द शहर में ऐसा कोई नहीं करेगा, गांव में चल सकता है। शहर में द वे अंजलि इज टेलिंग दैट इज अ बेटर वे। पर यह है कि आप advise your friends to keep two containers for Yes. garbage, one for wet, another for plastic. Plastic is a danger, very dangerous thing. In fact, if you listen to that, तो आदमियों में आने लग गया ना, the way she was telling कि छोटी एज में आपको हार्ट अटैक, बच्चा उसको हार्ट अटैक हो गया, व्हाट द नॉनसेंस इज होता है, हम तक सुनते थे 60 साल के बाद होता है। तो वो पोल्यूशन हो रहा है, जैसे हमें ग्रेट पोल्यूशन, धरती के ऊपर पोल्यूशन, आसमान को पोल्यूशन एवरीवेयर। So we also have Asha ji here. Asha ji, you would like to throw some light over here. We also have Dipti ji, who's a nuclear scientist here. If you would like to throw some light on this topic. Yeah. So I would like to share that, of course, I personally at home, we lead a sustainable life. Like we follow reuse policy and all. Above that, what we are doing is we have a project called as the Green Zones in Mumbai. Jahan we are associated with over 100 schools, and their students are taught how to lead a sustainable life. We provide them with color coded dustbins, and the dry waste is collected and recycled. We make it into benches, and these are again put in the schools. So slowly there is a movement that is we have started here, and which is working out quite well. So hopefully, something you can share with us, so we can share it with group internally, whereby yeah, surely I can. I mean, I'm not very tech savvy. I can send it to you, and you can definitely share. It is for the Green Zones project. You can sounds very interesting. Yeah. So if you could throw more light, how exactly are the schools working? And yeah, so we are currently working with schools in Mumbai. What we have done is we are adopting those schools, and we conduct awareness programs, and a lot of DIY activities, making it actually fun for the children. Because textbooks में तो वो पढ़ते हैं green is for wet waste and blue is for dry waste, but in actual practice in life they are not very aware. तो हमने ऐसे सेशंस लेते हैं from 5th to 9th standard बच्चों के लिए, and every month there is a collection drive happening where our vehicle goes and collects, and we are happy to say thousands of kgs of plastics have been recycled. And children, they start from school, they practice it at home, and then they take it to the community. Correct. So, and we work mostly in areas like slums where there is actually no organized collections of waste. So this is a small initiative that is started and which is making a difference. That's damn beautiful. It's a very good project, ma'am. We would like to hear more and promote it around. So please do share further. Yeah, surely I'll do that. I'll send it, share the details with you. And if anybody would like to know more, please reach out to me. I'll put my number on and the email ID on the chat box. Please do that. So, Dipti ji, Pranab ji, Praveen ji, you are here. Naresh ji, if you would like to share some view. One sec. Unmute yourself. 1 second. Naresh ji, unmute yourself. Sir. Yeah. Now? Yeah, we can hear you. But I can't see anybody today. Well, I don't know. We can see everyone. I don't know. I can't see this. Nobody is. I can see myself only. Okay, I think on the top now you can see speaker view and personal view. Just choose gallery view. On the top left, you can see 9 columns over there. You can see a box with 9 dots. No, I can't. I'm on a laptop actually. Yeah, that's what you can see on the top left now. You can see 9 dots next to ZM. Just click gallery view. No, it's not there. Just a minute. You can see, you will see ZM next you'll see 9 dots. So just choose gallery view.
No, it's not there. Anyway, you can hear, you can see and hear me, na? Yeah, Yes, very well. yes. Okay. Yeah, I can speak at least. Yeah, whatever has been said by, people, Aarti ji and Anjali ji, it is very much of use, no doubt. People must stop, as far as possible, plastic use should be curtailed. In fact, what I am doing, we are getting the milk in the plastic packets. So Mhm. whatever days, whatever kachra is accumulated, I keep it in that. So anyway, I'm always going to throw away that bag, milk bag, but I Mhm. accumulate everything in that. So I don't like to use any plastic bag. So that is how I'm thinking that I'm helping the nature in that way. Mhm. Otherwise there is no much contribution from our side. But even while collecting the vegetables also, in Matunga all the vegetable vendors goes on giving plastic bags. Right. They are not at all worried about the environment or anything, and the Mhm. worst possible plastic bags are given, single use plastic and very thin, and they don't mind in giving as much as you want. Correct. That's a very bad thing actually. One must It stop was using. banned once upon a time. It was banned in Mumbai, Yeah, but ban didn't last for long, and the plastic bags again came into picture now. yeah, So many plastic bags. I mean, on paper, there is a single-use plastic ban. Yes, yes, but On paper है, but कोई सुन नहीं रहा है. नहीं सुन रहा है, नहीं सुन रहा है. Single use allowed, I think. Single use, one time use plastic is used, जो ये सब्जी वाले करते हैं. But then it हाँ, cannot be thrown as such. exactly. It cannot be. It should be, I mean, be preserved or kept for the man who collects it. जैसे सोसाइटीज में हम कचरा कलेक्ट करने वाले आते हैं, तो उनको अगर हम सहूलियत दे दें कि साहब दिस इज प्लास्टिक एंड दिस नॉन प्लास्टिक, होता है कलेक्टिव ऐसे करते हैं वो, जहाँ ऐसी सुविधा होती है. हाँ, दूसरा हैबिट फॉर्मिंग, बिकॉज आई रिमेम्बर कपल ऑफ ईयर्स बैक, छोटा बच्चा मेरा ग्रैंडसन, उसने एक टॉफी खाई, उसने जेब में रख दिया उसका छिलका. तो आई वाज सरप्राइज टू सी. मैंने मेरा कपल ऑफ ईयर्स नहीं, 10-15 साल पहले की बात. आप तो ही इज इंजीनियर, इसको मानसिक पता है. तो मैंने कहा कि जेब में करो, क्या बात है? मैंने कहा ये कीमती चीज है. नहीं नहीं, उसमें रखूंगा, कचरे के डब्बे में डालूंगा. तो छोटे बच्चों में ये अवेयरनेस थी कि इट शुड नॉट बी थ्रोन लाइक दिस. एवरी चाइल्ड शुड बी एजुकेटेड कि भाई ये खतरनाक चीज है, इसको जो है ऐसा नहीं फेंकने का एक सड़क में. बाबा आपने ये बात भी बहुत अच्छी कही. एक जो अभी अवेयरनेस आ रहा है, पहले ना हम्म. कुछ साल पहले क्या होता था कि सब लोग कचरा ना ऐसे ही फेंक देते थे. बॉम्बे में भी अगर आप हाँ. देखोगे ना, तो हम्म. आपने चिप्स खाया या पार्ले जी खाया, पार्ले जी के पैकेट ऐसे ही फेंक देते थे. अब अवेयरनेस आ चुकी है कि लोग उसको कलेक्ट करके ना एक बिन में डालते हैं, या तो फिर लाइक लद्दाख इज कम्प्लीटली प्लास्टिक फ्री except for a few new places which I saw. People are not littering anymore. So not littering is also one of the very good ideas of saving the planet from plastic waste. So that is also one good important हाँ. thing. So, like somebody mentioned milk bags, right? कि दूध के Yeah, पाउच. So yes, हमें सबसे पहले सिखाया जाता है when we are studying plastic waste कि मिल्क के पाउचेस, वो जो छोटा सा हम काट के छोटा सा पीस ऑफ प्लास्टिक होता है ना, हाँ, एक तरफ से काट दिया, उसको कभी भी अलग से नहीं फेंके. मतलब नहीं, वो कहीं अंदर ही डाल देने का. अंदर ही डाल देने का, या फिर कोशिश करिए कि लंबा कट बनाए, क्योंकि जो या बाबा ने बोला, जानवर उसी को खाते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों को, क्योंकि बड़े वाले तो अवॉइडेबल है, बट वो हम्म. छोटे वाले उनके गले में अटक जाएंगे, बर्ड्स के पैरों में अटक जाएंगे, वो सबसे यस, यस, डेंजरस होते हैं. बराबर. Right. अभी So we अभी have हाँ, बोलिए. नहीं नहीं मैं मेरे घर में प्लास्टिक और ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट अलग रखती हूँ. और हम भी अलग रखते हैं यहाँ पे. जनरली मैं जब सब्जी लेने जाती हूँ तो मैं सब्जी वाले को बोलती हूँ कि ये मेरे थैली में मुझे दे, या कुछ छोटी मोटी चीजें लानी है तो मैं घर से 2-3 प्लास्टिक तो यूज करते ही है वो तो होगा ही, बट घर वो से तो लेके होगा जाती ही. हूँ सो दैट ज्यादा कलेक्शन नहीं हुए. और जब हम अभी जापान घूमने गए थे तो वहां एक चीज देखी हमने कि वहां डस्टबिन ही नहीं है, हम्म. नॉट ए सिंगल डस्टबिन.
इतना सब मिस हम लोग जब गए थे तो चेरी ब्लॉसम का सीजन था, तो बहुत बहुत मेले लगे हुए थे और खाना पीना भी बहुत था, लेकिन कहीं पे भी डस्टबिन नहीं था। तो लोग क्या करते थे, जो भी खाते थे उनको पर्टिकुलरली वो एक अपना बैग लेके ही साथ में चलते हैं। यस मुझे भी बोला गया था, मेरी बेटी भी उसके पहले गई थी, तो यू शुड कैरी यूर बैग। तो हम लोग भी यहाँ से बैग कैरी करके गए थे। और जो भी हम लोग, तो हमारा क्या है ना, बाहर जाते हैं जैसे दुबई जाते हैं तो वहाँ हम लोग स्पीटिंग वगैरह करते हैं तो इतना हाई दंड है कि लोग नहीं करते हैं। बट यहाँ इंडिया में वैसा कुछ है नहीं, तो हम बिंदास जो भी है खाया पिया फेंक दिया और थूके। और ये रिक्शा वाले को वगैरह बोलने जाते हैं तो वो लोग हमको ही ऐसा लुक्स देते हैं कि जैसे ये उनकी नहीं, हम जनता लोग के हक है। हम लोग विश्व गुरु हैं ना। हाँ, इसलिए विश्व गुरु हैं, इससे सब चलता है। चलता है। यस। क्या मुश्किल है। बट ये दुबई और बाकी सारी कंट्रीज में जो हेवी फाइन्स है, that heavy fining is also something a very good thing that the government is doing, which is not possible in India. की अभी बीच में जब ट्रैफिक वालों ने ना 5,000 और 50,000 फाइन कर दिए थे ना, तब everybody had started following traffic rules. हाँ, तब सबके अभी सर पे हेलमेट आ गए थे। पर but तब तक जो दुबई में तो सीधा अपोजिशन देते हैं। अपोजिशन बोलता है ना कि ये गरीबों को क्यों आप दंडित कर रहे हैं, वो गरीब आ जाता बीच में और तो फिर वो कि सब गड़बड़ हो जाता। गवर्नमेंट कैन नॉट टेक स्ट्रिंजी एक्शंस, वेरी डिफिकल्ट। ये डेमोक्रेसी है। दिस but इज help वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स ऑफ द डेमोक्रेसी। यू कैन ये heavy नॉट। fines help. हाँ, आप जो है सुधार नहीं सकते लोगों को डंडे के बल पे। नहीं तो क्या था, डंडे रखो, मत फाइन मत करो। एनीबडी फाउंड डूइंग दिस थिंग, मत दो मारो खींच के, तो आदमी डरेंगे। उसमें क्या बात है, करते हैं। देयर आर प्लेसेस टू डू इट। फिजिकल पनिशमेंट इज वन ऑफ दी, आपका जो सबसे पुराना सिस्टम है दंड का, वो है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दी अरेबियन कंट्रीज की जहाँ हाथ से चोरी करी हाथ काट दिया जाए, उस पे नहीं जा रहा हूँ। बट आई एम टेलिंग यू कि फिजिकल पनिशमेंट इज ऑलवेज द बेस्ट फॉर टीचिंग पीपल जो मानते नहीं है। पर यह है कि जहाँ भगवान की मर्जी है, डेमोक्रेसी में तो एवरीथिंग गोज। एक मुझे यहाँ Strictness is required. Strictness is definitely required. उसमें मैं यहाँ इंडिया में ऐसा है अभी ईश्वर की कृपा से कि भगवान है कि नहीं इसके लिए वोटिंग होगी। नहीं है, ज्यादा लोगों ने कह दिया तो नहीं है। हम बताइए, मतलब सत्य को झूठ बता देंगे अगर मेजोरिटी हो गई तो देयर आर सर्टेन थिंग्स इसमें कि मेजोरिटी माइनॉरिटी से कोई मतलब ही नहीं है। सत्य इज सत्य। ए थिंग व्हिच इज डन इज टू बी डन। एक कॉमेडी उसके इंसिडेंट बताना चाहूंगी मैं हाँ। दुबई में थी एंड दुबई में आई हैव अ स्मॉल डॉटर, माय डॉटर इज 14 ईयर ओल्ड। सो वी वर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और हम लोग ना दुबई में एकदम स्मार्टली अल्कोहल पॉकेट में लेके घूम रहे थे, प्लास्टिक की बोतल में, और हमको पकड़ लिया वहां पर। तो लिटरली वी वर इन जेल एंड यू नो वो हमारे और हमारे बच्चों का चेहरा देख के दे लेफ्ट अस, बट दे वर वेरी क्लियर, कोई 5,000 या 50,000 या 5 लाख दे दो, नो दिस you have to be like punished. Punishment is inevitable. That is something which actually stops the crime rate in the even the country. So that's one thing very. तो उसकी एक चीज है कि जब हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं तो वी स्टडी अबाउट दिस थिंग कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आपको इनाम मिल रहा है। बट वी ऑल्सो स्टडी दिस थिंग कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, राइट? कुछ बुरा करने से पनिशमेंट मिल रही है। देयर आर बोथ गुड वेज ऑफ टीचिंग। इट्स जस्ट फिजिकल फोर्स हुआ या कोई भी तरीके का फोर्स होता है या गिल्ट होती है। सो दिस इज व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल हैव नोटिस्ड कि अगर आप किसी को गिल्टी फील कराते हो, उन्हें ये दिखाते हो कि आपके जीने का तरीका गलत है, वो उस पर और अड़ जाता है। ये ह्यूमन नेचर है। अगर कोई मुझे कल आके बोलेगा ना कि आपके जीने का तरीका गलत है, चाहे मैं कितनी भी लॉजिकल हूँ, कितनी भी रैशनल हूँ, मुझे उसकी बात समझ भी आ रही है, मेरा ईगो बीच में आ जाएगा। समथिंग जो कि मैं जानती हूँ। तो जो लोग अनअवेयर है
उनके लिए तो उन्हें तो लगेगा नहीं, मुझे अपने आप को अभी के अभी डिफेंड करना है। दैट इज वाई फोर्स से ज्यादा हमें अवेयरनेस, जो बाबा ने कहा कि उनके ग्रैंडसन को वो अवेयरनेस थी कि वो टॉफी का रैपर डस्टबिन में जाएगा, एंड हैबिट बिल्डिंग, आई डोंट रिमेम्बर किसने कहा, बट हैबिट बिल्डिंग इज द ओनली वे जिससे हम प्लास्टिक वेस्ट एंड ये सारे जो क्राइसिस है इनको सॉल्व कर सकते हैं। So agree. That's so true. We have Praveen ji, we have Pa here, we have Pranab here. We would like to throw some views. Pa, आपको कुछ बोलना है? मैं सिर्फ सुनने के लिए आया। अच्छा, great to hear. Welcome back. Praveen ji, we have Praveen ji here, Pranab ji here. You would like to say something? Pranab ji, Praveen ji. No, I think once they unmute and they are able to say further. But or in terms of sustainability, apart from plastic, how do you think? I think आशा जी आप लोग बहुत strongly work कर रहे हैं इस field में. What do you see as a future for India? You think people are going to give up plastics या plastic बढ़ने वाला है? What is your thought process? इस बात पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ जी, श्योर सर, बोलिए। सबसे पहले इस चीज के लिए मूलभूत परिवर्तन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी से लेके अपने अपन इंसानों को, मतलब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को, और गवर्नमेंट पॉलिसी से मूलभूत परिवर्तन करना जरूरी होगा। ये छोटी छोटी पैकिंग जो आती है पाउचेस में, वो सबसे ज्यादा न्यूसेंस कर रही है। एवरीथिंग थ्रो अवे, मतलब यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो बहुत नुकसानदेह है। और उसी का कचरा पानी में वो मेल्ट नहीं होता, वो लेमिनेटेड किया होता है। वो जो प्लास्टिक है वो लेमिनेटेड किया होता है, एयर टाइट होता है, और वो कहीं मिलता नहीं, घुलता नहीं, कुछ नहीं होता है। मतलब वही पानी की नाली में ब्लॉक करते हैं, हर चीज होती है। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले ये छोटे पाउचेस वाले सिस्टम बंद करने होंगे। बड़े बड़े कैरी बैग तो उन्होंने बंद कर दिए, लेकिन जो मूल में जो प्रॉब्लम हो रही है उस और ध्यान नहीं गया शायद। वो उसके ऊपर अवेयरनेस जरूरी है, और पब्लिक को भी वो खरीदना बंद करना पड़ेगा। आदत से बन गई है वो, आदत से यूज एंड थ्रो वाली आदत को बदलना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ। फिर आपकी इच्छा। यू आर राइट। अभी वैसे आ रहे हैं छोटे पाउचेस, पेपर पाउचेस आते हैं। इवन तो ब्लिंकिंग पेपर, जैसे पे बिल्कुल पेपर खाते हैं। तम्बाकू के, वो तम्बाकू खाने वाले जो हैं उनके पेपर के पाउचेस होते हैं। वो यू फाड़ा, मोमेंट आ रहा, फेंक दिया। वो खैर एनी वो पेपर इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। इनफैक्ट गवर्नमेंट जब पॉलिसीज बनाती हैं तो दे हैव टू जस्ट कीप इन माइंड लॉट मनी थिंग्स। नंबर 1, अपोजिशन क्या करेगा इसमें। तो सबसे पहला अड़ंगा तो सबसे पहला अड़ंगा तो ये होता है। फिर दूसरा, कैन एवरीबडी अफोर्ड इट, इट इज दूसरा। क्योंकि अभी वी कैन नॉट से कि इंडिया फला फूला है। हमारी जो है ज्यादा जनसंख्या अभी बिलो पॉवर्टी लाइन है। हालांकि ऑन पेपर्स इट मे नॉट बी दैट वे, बट क्या है, 2 वक्त का खाना मिलेगा तो वी डू नॉट कॉल इट दैट हम अभी वो हैं। तो दूसरा वो भी देखना पड़ता है उनको। देन तीसरा ये है कि पीपुल विल दे अडॉप्ट इट नॉट इन जनरल। हमारी जो पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, विल वी चेंज इट। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी। अभी इट वाज, ये सबने एग्री किया कि हम लोग जो है बीच में इस बात पे आते हैं कि मुझे अगर कोई कहेगा भाई ये गलत काम है, इसको मत करो, तो मैं इसको और जिद से करूंगा। हु आर यू टू टेल मी? पहला क्वेश्चन इज दिस। तो ये थोड़ा सा नम्रता जो है ये माँ बाप सिखाते हैं, पहली चीज जो है। फिर आप पढ़ लिख के सीखते हैं, दूसरी चीज है। पर देर आर पीपुल वो उल्टे ही रास्ते चलते हैं। सत्संग का ये फायदा होता है। सत्संग, इफ यू जस्ट डू सत्संग राइट फ्रॉम योर मदर, फादर, देन योर टीचर, देन उसके बाद अच्छे फ्रेंड्स, तो उसका आदमी का फर्क पड़ जाता है उसमें। यू विल ऑलवेज फाइंड कि जब 2 बच्चे एक कमरे में होते हैं हॉस्टल में, तो वो 2 बच्चों में से एक जो है दूसरे को दबा देता है। अब वो जो दबाने वाला है वो उसका अपना कैरेक्टर कैसा है, उसकी अपनी आदतें कैसे, दूसरा उसका फॉलोअर हो जाता है।
पर ज्यादातर होता क्या है कि लालू जी जब वहाँ उनसे पढ़ने गए थे जापान के प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने कहा कि हमको जापानी सिखाओ, क्योंकि वो रेलवे मंत्री थे, वो जापान के सिस्टम को पढ़ना चाहते थे। तो उसने कहा ठीक है सिखाते हैं। तो लालू जी ने हफ्ते भर तक दोनों को एक तरफ रखा कमरे में बंद होके। तो जब कमरे से बाहर आए एक हफ्ते बाद, तो जापानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना अवधि में बात करने लग गया। पब्लिक का क्या हो गया? तो लालू जी गए थे सीखने के लिए, नहीं लालू जी ने उनको सिखा दिया उल्टा। ये सत्संग का असर भी पड़ता है ऐसा। तो खैर एनीवे, एवरीथिंग सेंटर्स अराउंड एंड इट जीरोज कि आपका पढ़ाई लिखाई, आपका पर्सनैलिटी कैसे बन रही है। तो देन इट स्प्रेड्स। तो इसलिए कहते हैं कि पहले घर से शुरू करो, फिर अपनी सोसाइटी में जाओ, फिर आपके लार्जर करो। तो करते 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 देन ओनली द कंट्री विल चेंज। इनफैक्ट हमारी हाँ सिंपलेस्ट चीज जो अपन कर सकते हैं इज फॉर रिड्यूसिंग प्लास्टिक इज, जब हम लोग बेसिक शॉपिंग करने जाते हैं तो हम लोग उनसे कोई भी बैग ना ले। लाइक दैट्स व्हाट आई पर्सनली आल्सो डू, कि आप एक बैग लेके जाते हो तो एक भी बैग ना लो, या सब्जी लेने जा रहे हो या पनीर लेने जा रहे हो, कुछ भी, तो आपके सेल्फ कंटेन्ड आइटम्स अगर आप लो तो आप काफी एक एक टाइम पे ही एक डब्बा भर के आप प्लास्टिक सेव कर सकते हो, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड बाय यू। ये एकदम बेसिक समथिंग दैट वी कैन डेफिनेटली वर्क ऑन। इन प्रैक्टिस यू विल सी दीज डेज प्लास्टिक के बड़े बड़े पैक्स आ रहे हैं इतने कि क्या बोले हम। जैसे तेल सारा प्लास्टिक में आता है, साबुन 10-10, 15-15 केजी प्लास्टिक में आ रहा, लिक्विड सोप जो आता है आपका। आई वॉज सरप्राइज टू सी इन माई ओन हाउस, इतने बड़े बड़े पैक आते हैं और वो सप्लाई उसमें हो रहा, बंद हो गया वो पुराना वाला सिस्टम। तो प्लास्टिक को कहाँ था। हाँ, उसका एक फायदा भी नुकसान भी है। वो बड़े पैकेट जो आप बोल रहे हैं, जो छोटे पैकेट होते हैं ना, अगर लिक्विड सोप आप इतनी खरीदते हो प्लास्टिक में, वो ज्यादा हानिकारक है। बड़ा पैकेट इजी साइकिल है, बट इसीलिए हाँ राइट यू आर। फॉर दैट मैटर यू कैन अवॉइड दोज स्मॉल पैक्स इफ यू परचेज बिगर वन। दूसरा वो दैट प्लास्टिक कैन बी रीयूज मच बेटर वे कंपेयर टू दीज अदर पैकेट्स। वो तो सही है। ये कि आप एल्यूमिनियम के टिन में खरीद लो, जो हमारी नानियां दादियां करती थी। वो टिपिकली we'll have to see solutions which are more sustainable, जो अपन at mass level adopt कर सके। So Asha ji, Dipti ji, if you have any viewpoints, Dipti ji, if you can give more viewpoints on how your Japan visit can help, so we can definitely try giving it across. नहीं, अभी जो बाबा बात कर रहे थे पुराने जमाने की और अंजलि ने भी बोला, तो मुझे याद आया कि मेरी शादी हुई, मेरे मैके में तो मैंने कुछ काम नहीं किया था। तो शादी होने के बाद मैं घर से निकल पड़ी तेल घी सब लेने के लिए। तो मुझे शॉप वाले ने पूछा आपके पास डब्बा किधर है? तो मुझे जबकि आज की जनरेशन को ये जरूरत नहीं है, वो बाहर जाके करते हैं, अभी तो ऑर्डर ही करते हैं, लेने भी नहीं जाते हैं। तो अपना आज से मैं 40 साल पहले की बात कर रही हूँ। तभी प्लास्टिक हाँ जी। तो ऐसे प्लास्टिक कैसे आ गया अपने जिंदगी में, और हमने सब लोगों ने इतना इसको अडॉप्ट कर लिया है कि अभी प्लास्टिक फ्री रहना थोड़ा डिफिकल्ट। ड्यूरेबिलिटी भी है ना उसकी। प्लास्टिक फ्री रहना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट अगर हम उसे रिस्पॉन्सिबली यूज करें एंड रिसाइकल करें तो इट इज मैनेजेबल एंड इट इज वन ऑफ द best inventions of mankind, because it is convenient, it is very economical, but इसे यूज करने की तरीके जो है, because हमने कोविड में देखा it has helped a lot. So the thing is we have to just create an awareness on how to use it. और प्लास्टिक को जैसे कन्वीनियंस माना गया है वैसे मत कीजिए, यूज इट एंड डिस्पोज इट वेल। और इसमें दोनों चीज काम आएंगे, जैसे कि अवेयरनेस एट वन साइड एंड ऑल्सो पेनल्टीज, बिकॉज हम इंडियंस को जब जेब से पैसे जाते हैं
So we are very careful. हम जाके सिंगापुर या दुबई में ये नहीं करेंगे. So it is very important कि penalty is also there, and I'm sure government will have a system, because हमने कहीं पर भी कार टो रख दिया नो पार्किंग में तो इमीडिएटली टो हो जाता है. हम ठीक है, टैक्सेस नहीं पे ठीक करते तो इनकम टैक्स वाले का लेटर आ जाता है. So have a system by which वैसा there is yeah, that's filtering, and we things give it to recyclers and have sense of pride कि ये मेरी country है, इसको clean रखना है, which is sadly Still, yeah. आएगा, So- चेंज आएगा, होपफुली चेंज आएगा, बट ये है कि इट इज गोइंग टू टेक टाइम. But It we is don't always have time, sir. We should have been done yesterday. नहीं, हमें होपफुल होना चाहिए. लेट अस बी होपफुल. Idea is that एक our चीज population हाँ जी एक चीज और बोलना चाहता हूँ. जी. आजकल गवर्नमेंट काफी प्रयास कर रहे हैं. अभी रिसाइकल पब्लिक इसमें भी साथ नहीं देती है. रिसाइकल प्लास्टिक का काफी यूसेज करना चालू हो गया है. रिसाइकल फैब्रिक आ रहे हैं, और रिसाइकल जो अपने डामर रोड बनते हैं, जो ब्लैक रोड्स, उसमें यूज हो रहा है रिसाइकल प्लास्टिक. और कपड़े बन रहे हैं जो आपको आइडेंटिटी नहीं कर पाएंगे, इतने अच्छे कपड़े बन रहे हैं. लेकिन पेट बॉटल और जो रिसाइकल्स हो उसको अलग अलग बिल्कुल साफ चाहिए उनको. फैक्ट्रीज लग चुकी है इंडिया में, लेकिन पब्लिक अभी भी वो कच्चे के रूप में डाल रही है और कचरा डंप कर रही है, और टन के हिसाब से कचरा हो रहा है. यदि उसको एटलीस्ट सेटराइट करके अलग अलग दे देवे तो रिसाइकल इंडस्ट्री काफी कुछ डेवलप जो अभी हो रही है, ऑलरेडी स्टार्टेड इन इंडिया, वो और ज्यादा हो जाएगा और प्लास्टिक का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा. ऐसा मैं सोचता हूँ. नहीं, आप हाँ बहुत जी. सही बोल रहे हैं सर. अभी जिस हिसाब से नेक्स्ट 5 years दिख रहे हैं ना, वो रिसाइकलर्स के लिए, whoever wants to get into recycling business के लिए इट्स अ बूम. बिकॉज आपने जैसे बताया, देयर आर लॉट ऑफ रोड्स इन यूरोपियन रीजन्स व्हिच आर मेड आउट ऑफ प्लास्टिक्स. कल इंडिया में चालू हो गया है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन. और बहुत जल्दी भी बन जाता है. लाइक अपने हाँ, जल्दी बन जाता है, और वो वाटर प्रूफ रहता है. रोड जो होती है वो वाटर प्रूफ बन जाती है ऑटोमेटिक. इवन और वो लोग उसके- ब्रिक्स घर बना रहे हैं प्लास्टिक्स के, which Yes, are yes. बस लेकिन अपना पब्लिक है ना, वो उसको अलग अलग करके दे देवे ना, उनको भी इनकम मिल जाएंगी. और ये यूसेज चालू है. बंद नहीं कर सकते तो नेक्स्ट क्या सोचना है अपने को. इतने साल से मेहनत करके भी प्लास्टिक बंद नहीं कर पाए अपन, तो अब उसका अल्टरनेट हाँ जी. रिसाइकल. अब रिसाइकल आ चुका है इंडिया में, लेकिन पब्लिक का नहीं है अभी भी. वही मतलब मेरा कहने का मतलब ये था, ये लॉजिक था. यदि वो रिसाइकल पर भी अपन कॉन्सेंट्रेट हो जाए, उनको इनकम भी मिलेंगी. करेक्ट. दोस्त पब्लिक को, उनको मतलब पब्लिक को इनकम भी मिलेंगी, और यहाँ इसका यूसेज भी हो जाएगा, और एवरीथिंग इज फाइन फाइन. एवरीवन विन विन पोजीशन में हो जाएगा. What is very beautifully happening in the world also, जैसे हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, सेम वे ये इंडस्ट्रीज भी इवॉल्व हो रही है. तो जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, आई एम श्योर द रिसाइकलिंग रेवोल्यूशन, जैसे अभी दीप्ति जी ने बताया कि जापान इज कंप्लीटली डस्टबिन फ्री. I'm sure we will have these kind of situations in our country also, and we've seen the change. Indore, for example, I don't know anybody is around from Indore. Indore is a very beautiful example of the best recycled city of India. In fact, of the cleanest city of the world, one of the cleanest city of the world. बात सही. So very clean city. क्लीन सिटी. Indore is clean. very well managed. In fact. Yes. And Asha ji is also doing a lot of initiatives from the point of educating from the ground level, that is from the school level itself. So we should have more and more such initiatives coming up in the coming years, which were not there 10 years back. हम like ये हम लोग ने बातें 10 साल पहले नहीं सुनी थी. सब कचरा रास्ते पे ही फेंकते थे 10 साल पहले. So We need more and more of Anjali's with us. Anjali and Asha ji is with us, definitely. Thank you. Great. This is a very amazing session that we had today. Asha ji, I will message you separately. आप मुझे आपका ग्रुप का initiatives ताकि we can spread a word. And Anjali, you also drop me all the links where we can send recycling work around the group, so we can share it around. And thank you everybody. Thank you so much for today's session, जहाँ हमको काफी insights मिले discussion के लिए. Next week, I'm planning to do a session on Hanuman Chalisa. So, Hari Om. Yeah, so this will be more about what the Hanuman Chalisa talks about, the way of life.
or we'll have more and more such sessions coming up. Thank you, Anjali. Thank you for your time for all of us. Thank you, Asha ji, for joining us today. But let's stay connected for more and more such upcoming shows. Thank you so much. Thank you. Thank you for organizing this. Thank you. Hari Om, Hari Om, Hari Om to everyone. Bye bye. Bye, Namaste. everybody. Namaskar. क्या बात